ناظرین السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ سعودی عرب مدینہ منورہ کے قریب حیدرآبادی عمرہ زائرین کی بس حادثے کا شکار، 42 سے زائد جاں بحق، ایک ہی خاندان کے 16 افراد بھی شامل۔ شہر میں ماحول سوگوار، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا اظہار افسوس۔ مدینہ منورہ کے پاس ہوئے حادثے کے مہلوکین کے ورثاء کو 5 لاکھ روپے فی کس ایزگریشیا کا اعلان۔ ریاستی وزیر اظہر الدین کی قیادت میں مہلوکین کے خاندان کے 2 ارکان وفد کے ساتھ سعودی عرب جائیں گے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کا سعودی عرب کے ہندوستانی سفارتکاروں سے رابطہ، مؤثر اقدامات کی اپیل۔ مجلسی ارکان مقرنہ کی مہلوکین کے ورثاء سے ملاقات اور اظہار تعزیت۔ دو ہفتوں کے اندر انحراف کرنے والے ارکان اسمبلی سے متعلق فیصلہ لیں ورنہ توہین عدالت کے تحت کارروائی ہوگی۔ تلنگانہ اسپیکر کی سپریم کورٹ نے کی سرزنش۔ گچی بولی میں غیر مجاز تعمیرات کے خلاف کریک ڈاؤن، حیدرا کی انہدامی کارروائی۔ اور بابا نگر میں لاپرواہ ڈرائیونگ کا افسوسناک واقعہ، کار ڈرائیور نے معصوم بچے پر گاڑی چلا دی، ہاسپٹل میں علاج جاری، ڈرائیور کی شناخت۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کی ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ، کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز۔ شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص۔ 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن، beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے
सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब में मदीने मुनव्वरा के करीब हुए हादसे में हैदराबाद के 42 से ज्यादा ज़ायरीन जाँ बहक हुए हैं। मरहूमीन में एक ही खानदान के 16 अरकान भी शामिल हैं। हुकूमत ने महलूकीन के खानदान से 2 अफराद को सऊदी अरब भेजने का फैसला किया है। 10 बच्चे भी महलूकीन में शामिल बताए गए हैं। इस हादसे से शहर की फिजा सोगवार देखी गई। मजलिस के अरकान मुकर्रना और रियासती वजीर अजहरुद्दीन ने महलूकीन के घर जाकर अफराद खानदान को पुरसा दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने सऊदी अरब के हिंदुस्तानी सिफारत खानों से राब्ता किया है। हैदराबाद के सेक्रेटेरिएट और हज हाउस में हेल्पलाइन नंबर भी कायम किए गए हैं। पेश है तफसीली रिपोर्ट। सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मदीने मुनव्वरा के करीब इतवार और पीर के दरमियानी शब 1 ता 1:30 बजे के दरमियान हुए खौफनाक हादसे में 42 से ज़्यादा उम्रा ज़ायरीन जाँ बहक हो गए। महलूकीन का ताल्लुक तेलंगाना के हैदराबाद से है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबादी ज़ायरीन मक्का से मदीना जा रहे थे। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 1:30 बजे जब उनकी बस मफरीहात के पास पहुंची, टैंकर से टकरा गई। हादसे के साथ ही बस शोलापोश हो गई और तकरीबन 42 से ज़ायद मुसाफिरीन बशमूल ख़वातीन और बच्चे जाँ बहक हो गए। बताया गया है कि हैदराबाद की ये ज़ायरीन मौजमजाही मार्केट पर वाक़े अलमक्का ट्रैवल्स, अंबरपेट के अरहलमैन ट्रैवल्स, हफ्सा ट्रैवल्स और मेहदीपट्टनम में वाक़े फ्लाई जोन ट्रैवल्स के जरिए उम्रे पर रवाना हुए थे। महलूकीन में 28 ख़वातीन और 17 मर्द और 10 बच्चे बताए जा रहे हैं। जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक चिंतलमेट, फलकनुमा, मोगल नगर, आसिफ नगर, झिर्रा, मुशीराबाद, नल्लाकुंटा, नारायणगुड़ा, टोली चौकी, लंगर हाउस, मुसाराम बाग और मेहदीपट्टनम से बताया गया है। जैसे ही हादसे की इत्तला मिली, महलूकीन के अफराद खानदान ट्रैवल एजेंसी के दफातर पर जमा हो गए। रियासती वजीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स मोहम्मद अली शब्बीर के हमराह नटराज नगर झिर्रा पहुंचकर हादसे में जाँ बहक होने वाले बाज़ ज़ायरीन की अफराद खानदान से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली माजिद हुसैन को महलूकीन के विरसे से मुलाकात की हिदायत दी। रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने मुगल नगर के 5 महलूकीन के विरसे से मुलाकात और इजहार ताज़ियत किया। रुकन असम्बली ने टोली चौकी में भी 2 महलूकीन के लवाहिकीन से मुलाकात करते हुए इजहार ताज़ियत किया और सदर मजलिस का पैगाम पहुंचाया। मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हादसे में जाँ बहक होने वाले मुसाराम बाग की 2 ख़वातीन अनीस फातिमा और आमिना बेगम के अफराद खानदान को घर पहुंचकर पुरसा दिया। रुकन असम्बली खानदान के दूसरे अरकान को अपने खर्च पर सऊदी अरब भेजने के इंतजामात कर रहे हैं। रुकन असम्बली ने मरहूमीन के लिए दुआ की। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने फलकनुमा वट्टेपल्ली, अमजदुल्ला बाग काला पत्थर और फारूक नगर के 5 ज़ायरीन के घर पहुंचकर अफराद खानदान को पुरसा दिया। रुकन असम्बली ने सदर मजलिस के पैगाम से भी मरहूमीन के विरसे को वाकिफ करवाया। हल्के के कॉरपोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। सुलेमान नगर चिंतलमेट में रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग, जाँ बहक ज़ायरीन परवीन बेगम और उनके 5 अफराद खानदान के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार किया। रुकन कौंसिल ने मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। उन्होंने तयक़ुन दिया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में जाँ बहक ज़ायरीन के लिए मुमकिना ताउन फराहम किया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी इस हादसे पर गहरे दुख का इज़हार किया है। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव और डीजीपी श्रीधर रेड्डी को मुतासरीन और उनके अफराद खानदान की तफसीलात हासिल करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को वज़ारत ख़ारजा से राब्ता करते हुए बचाव और राहतकारी के कामों को तेज करने पर जोर दिया। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से सेक्रेटेरिएट में कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जिनके नंबरात 799 7959 754 और 99 129 19545 हैं। इस हादसे पर कौमी सतह से भी ताज़ियती बयानात जारी हुए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया। जिद्दा और रियाज के हिंदुस्तानी सफारतखाने को मुतहर्रिक कर दिया गया है।
कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर महेश कुमार गौड़ ने भी मदीना मुनव्वरा के पास हुए हादसे पर सदमे का इजहार किया है। अपने बयान में महेश कुमार गौड़ ने कहा कि जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन की मुमकिना मदद की जाएगी। रियासती वज़रा मोहम्मद अजहरुद्दीन और पूनम प्रभाकर इस सिलसिले में मुसलसल मुतहर्रिक हैं और ज़रूरी इक़दामात कर रहे हैं। इस दौरान जद्दा की हिंदुस्तानी सफारत खाने ने मदीने के करीब हुए हादसे के तनाजुर में 24 घंटे कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। सफारत खाने की तरफ से ट्वीट करते हुए बताया गया है कि मदीना के करीब हुए हादसे के सिलसिले में महलूकीन के अफराद ख़ानदान की सहूलत के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया है और इस कंट्रोल रूम का नंबर 8002440003। महलूकीन के विरसा इस नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं। हिंदुस्तान के वजीर ख़ारजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने मदीना के पास हुए सड़क हादसे पर गहरे अफसोस का इजहार किया है और महलूकीन की पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया है। अपने एक्स अकाउंट पर जयशंकर ने कहा कि रियाद के सफारत खाना और जद्दा के कौंसल खाना की जानिब से महलूकीन के लवाहिकीन को मुमकिन ताउन फराहम किया जा रहा है। वजीर ख़ारजा ने ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मदीना मुनव्वरा के करीब सड़क हादसे में उमरा ज़ायरीन के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार करते हुए पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि उन्हें मौसूला इत्तला के मुताबिक तकरीबन 42 उमरा ज़ायरीन मक्का से मदीना जा रहे थे। हादसे की वजह से उनकी बस को आग लग गई। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि उन्होंने सऊदी अरब रियाद में मुतय्यन डिप्टी चीफ मिशन अबू मैथन जॉर्ज से फ़ोन पर बात की है और उन्हें हैदराबादी ज़ायरीन की तफसीलात भी फराहम की गई हैं। रियाद के डिप्टी चीफ मिशन ने मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। तेलंगाना के वजीर अखिलियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मदीना मुनव्वरा के पास हुए हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। हज हाउस में रियासती वजीर ने सूरत हाल का हज कमेटी के अहदेदारों के साथ जायजा लिया। रियासती वजीर के हमरा हुकूमत के मशीर मोहम्मद अली शब्बीर और दूसरे भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि हज हाउस में भी हेल्पलाइन नंबर कायम किया गया है और हम महलूकीन के पसमानदगान को मुमकिना मदद फराहम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि महलूकीन के ख़ानदान के किसी एक फ़र्द को सऊदी अरब भेजा जाए और ख़ानदान के रुकन के पास पासपोर्ट नहीं है तो इसके लिए भी सहूलत फराहम की जाएगी। मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मदीना के पास हुए हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद माजिद हुसैन ने बताया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस सिलसिले में सऊदी अरब के हिंदुस्तानी सफारत खाने से मुसलसल राब्ते में हैं और वो खुद यहाँ महलूकीन के पसमानदगान के साथ राब्ते में हैं। BRS पार्टी की सरबराह के चंद्रशेखर राव ने मदीना मुनव्वरा के पास हुए हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। अपने बयान में साबिक वज़ीर आला ने मक्का से मदीना जाने के दौरान हुए हादसे के महलूकीन के अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। KCR ने मरकजी और रियासती हुकूमत पर मौसर इक़दामात करने पर जोर दिया। KCR ने महलूकीन के विरसे को मुआवजे का भी मुतालबा किया। दूसरी तरफ पार्टी के कारगुज़ार सदर KT रामाराव ने भी मदीना में हुई हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया है। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस VC सज्जनार ने भी मदीना के पास हुई अमवात पर गहरे दुख का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मुख्तलिफ ट्रैवल एजेंसियों के जरिए 54 ज़ायरीन 9 नवंबर को सऊदी अरब रवाना हुए थे और 23 नवंबर को वापस होने वाले थे। 54 के मिन जुमला 4 ज़ायरीन मक्का से खानगी गाड़ी में मदीना के लिए रवाना हुए जबकि 4 मक्का में रुके रहे। उन्होंने बताया कि 46 ज़ायरीन मक्का से मदीना जा रहे थे। मदीना से 25 किलोमीटर के फासले पर बस ऑयल टैंकर से टकराकर शोलापोश हो गई। हादसे के वक्त बेशतर ज़ायरीन हालत नींद में थे। कमिश्नर पुलिस की इत्तला के मुताबिक 45 ज़ायरीन जाँ बहक हुए हैं। सिर्फ एक अब्दुल शुएब नामी शख्स को हॉस्पिटल में शरीक किया गया है जहां उनकी हालत नाजुक है। तेलंगाना हुकूमत ने सऊदी अरब में हुए हादसे के मरहूमीन के वर्सा के लिए फीकस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। रियासती काबीना के इजलास में फैसला किया गया। रियासती काबीना ने वजीर अखिलियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन की क़ियादत में महलूकीन के विरसा के साथ वफ्द सऊदी अरब रवाना करने का फैसला किया है। वफ्द में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक रुकन असम्बली के अलावा महकमे अखिलियती बहबूद के सीनियर ओहदेदार शामिल रहेंगे। जाँ बहक ज़ायरीन के फ़ी ख़ानदान से 2 अफराद को सऊदी अरब रवाना करने का फैसला किया गया।
रियासती काबीना ने मजालिस मुकामी के इंतखाबात से मुतालिक फैसला प्रजा पालना उत्सवालू के बाद करने से इत्तेफाक किया है। तेलंगाना प्रजा पालना उत्सवालू 1 दिसंबर को मुनक्किद होगा। काबीना के इजलास में राइजिंग तेलंगाना 2047 पर भी तबादले ख्याल किया गया। सऊदी अरब बस हादसे में जाँ बहक होने वाले ज़ायरीन को सऊदी अरब भेजने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने हज हाउस पहुंचकर महलूकीन की तफसीलात हासिल की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में की गई नुमाइंदगी पर हुकूमत की तरफ से महलूकीन के खानदान से 2 अफराद को सऊदी अरब रवाना किया जा रहा है और मंगल या चारशंबे को उनकी रवानगी अमल में आएगी। महलूकीन के अफराद खानदान से अपने पासपोर्ट्स हज हाउस में जमा करने की दरख्वास्त की गई है। सदरनशीन हज कमेटी खुसरो पाशा ने बताया कि जिनके पासपोर्ट की मियाद खत्म हो चुकी है, मंगल को उनकी तजदीद का अमल मुकम्मल होगा और उसी दिन मुमकिना तौर पर उनकी सऊदी अरब रवानगी अमल में आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हिराफ करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई में ताखीर पर तेलंगाना स्पीकर की सख्त सरजनिश की है। मुअज़्ज़ज़ अदालत की चीफ जस्टिस BR गवाई की बेंच ने सवाल किया कि आप नया साल कहां मनाना चाहते हैं। आला अदालत की बेंच ने तेलंगाना असम्बली के स्पीकर G प्रसाद कुमार को 2 हफ्तों के अंदर इन्हिराफ करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत दी है। चीफ जस्टिस की बेंच ने स्पीकर तेलंगाना के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत करते हुए कहा कि स्पीकर के फैसले में ताखीर तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। वाज़ेह है कि स्पीकर की तरफ से इन्हिराफ करने वाले अरकान के खिलाफ ताखीर पर BRS पार्टी के लीडर कौशिक रेड्डी सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए हैं। आला अदालत की बेंच ने स्पीकर प्रसाद कुमार को खबरदार किया कि अगर 2 हफ्तों के अंदर फैसला नहीं लिया गया तो उन्हें तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। वाज़ेह है कि 31 जुलाई को मुअज़्ज़ज़ अदालत ने स्पीकर को 3 महीनों के अंदर फैसला लेने की हिदायत दी थी। रियासती वजीर कुंडा सुरेखा ने कुमरावली मल्लन्ना कल्याणम यात्रा को बड़े पैमाने पर मुनक्किद करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। इंडोमेंट की वजीर कुंडा सुरेखा ने अजला के ओहदेदारों के साथ मुनक्किदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताया कि 14 दिसंबर की सुबह 10:47 पर मल्लिकार्जुन स्वामी कल्याणम तकरीब मुनक्किद होगी। 18 जनवरी 2026 से 16 मार्च तक यात्रा का इनेकाद अमल में आएगा। रियासती वजीर ने हिदायत दी कि यात्रियों की सहूलत के लिए मौसर इंतजाम किए जाएं। इस मौके पर मुकामी MLA P राजेश्वर रेड्डी, इंडोमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलजा और कमिश्नर हरीश भी मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सुदूर का जल्द फैसला लिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा, काबीना में तोसी का मसला आला कमान और वजीर आला रेवंत रेड्डी के तहत आता है। जुबली हिल्स के इंतखाबी नतीजे पर महेश कुमार गौड़ का कहना था कि अवाम ने 25,000 से ज्यादा अक्सरियत से कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब बनाया है। BRS पार्टी का अवाम ने सफाया कर दिया है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली धमाके की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि दहशतगर्दी के लिए मुल्क में कोई जगह नहीं है। जिस तरह से इस हमले की मनसूबाबंदी की गई वो काबिल मजम्मत है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि दिल्ली के यहाँ पर जिस तरह से जम्मू कश्मीर के नौगांव में पुलिस स्टेशन में हुई हलाकतें भी हमारे लिए अफसोस का बायस है। मरकजी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी के इल्जामात के तहत गांधी भवन में यूथ कांग्रेस की तरफ से एहतजाजी धरना दिया गया। सदर रियासती कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने साबित कर दिया मुल्क में हर जगह वोट चोरी हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश है। बीजेपी इख्तिदार में आने के लिए वोटों की चोरी का इर्तिकाब कर रही है। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के कारकुनों की तरफ से वोट चोरी के खिलाफ नारे लगाए गए। रियासत के दौरे पर आए सदर इंडियन यूथ कांग्रेस उदय भानु भी इस धरने में शरीक थे। BRS पार्टी के सीनियर लीडर मन्ने कृषांक ने इंकशाफ किया कि नेल्लूर की कंपनी KLSR इंफ्राटेक ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को लैंड क्रूजर कार का तोहफा दिया था। मीडिया से बात करते हुए कृषांक ने कहा, रेवंत रेड्डी जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर थे उन्हें ये कार तोहफे में दी गई थी। बाद में ये कार रेवंत रेड्डी के भाई कोंडल रेड्डी के नाम पर रजिस्टर की गई। कृषांक ने इंकशाफ किया कि इसलिए रेवंत रेड्डी के KLSR इंफ्रा कंपनी को करोड़ों रुपए के ठेके दे रहे हैं।
انہوں نے کہا کہ اس کمپنی پر دیوالیےپن کے الزامات بھی ہیں، اس کے باوجود وزیر اعلیٰ اسی کمپنی کو ٹھیکے کیوں دیتے ہیں؟ اب تک 1500 کروڑ روپے کے ٹھیکے دیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے راموجی فلم سٹی میں ہوئی تقریب کے دوران وزیر اعلیٰ کے تلنگانہ سے متعلق ریمارک پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی نگرانی میں نرخی پھول باغ اپوکڑا ڈویژن میں محسن انسانیت مفت ہیلتھ کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا۔ قائد مجلس نے ہیلتھ کیمپ کا افتتاح انجام دیا۔ مختلف امراض کے ماہر ڈاکٹرز نے مریضوں کے معائنے کیے اور ان میں مفت دوائیں تقسیم کی۔ مقامی اور آس پاس کے علاقے کے عوام کی کثیر تعداد نے اس مفت ہیلتھ کیمپ سے استفادہ کیا۔ قائد مجلس اکبر اویسی نے تیقن دیا کہ اگر کسی کو علاج کے لیے ہاسپٹل میں شریک ہونے کی ضرورت پڑتی ہے تو انہیں ہاسپٹل میں علاج فراہم کیا جائے گا۔ مقامی عوام نے قائد مجلس سے اظہار تشکر کیا۔ مجلس کی نمائندگی پر منظورہ شادی مبارک کے چیکس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے چار مینار منڈل کے تحت منظورہ 74 چیک مستحق لڑکیوں کے سرپرستوں کے حوالے کیے۔ استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ سے اظہار تشکر کیا۔ استفادہ کنندگان کا تعلق فرت نگر، اعظم پورہ، عثمان پورہ، کٹل گڑا، چنچل گڑا، باغ جہارا، گڈی بولی، شاہ کالونی سے بتایا گیا ہے۔ ان چیکس کی جملہ مالیت 74,08,584 روپے بتائی گئی ہے۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ جعفر حسین میراد نے حلقے کے 213 مستحق لڑکیوں کے سرپرستوں میں شادی مبارک کے چیک تقسیم کیے۔ ان چیکس کی جملہ مالیت 2,13,00,000 روپے بتائی گئی ہے۔ استفادہ کنندگان کا تعلق امان نگر، بھوانی نگر، جہانگیر نگر، ظفر روڈ، دبیر پورہ، SRT اور واحد کالونی سے بتایا گیا۔ استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور رکن اسمبلی سے اظہار تشکر کیا۔ حلقے کے کارپوریٹرز اور کارکن اس موقع پر موجود تھے۔ رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد مبین نے شادی مبارک کے 102 چیکس مستحقین کے حوالے کیے۔ ان چیکس کی جملہ مالیت 1,03,11,000 روپے بتائی گئی ہے۔ استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور رکن اسمبلی سے اظہار تشکر کیا۔ ہیڈرا کی جانب سے پیر کی صبح گچی بولی میں غیر مجاز تعمیرات کے نظام کی کارروائی انجام دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق سندھیا کنونشن کو سرکاری اراضی پر غیر مجاز طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ شکایت ملنے پر ہائیڈرا نے پولیس کی موجودگی میں غیر مجاز ڈھانچے منہدم کر دیے۔ بتایا جاتا ہے کہ سندھیا کنونشن کی انتظامیہ پر غیر مجاز تعمیر کا الزام تھا۔ کمشن پولیس حیدرآباد VC سجنار سے تیلگو فلم انڈسٹری سے وابستہ اہم شخصیتوں چرنجیوی، ناگرجنا، راجا مولی اور فلم ساز دل راجو نے ملاقات کی۔ واضح ہے کہ 3 دن پہلے یہاں کے بوما خزاقی پورٹل کے سرغنہ روی کو سائبر کرائم پولیس کی طرف سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اسی تناظر میں فلمی شخصیتوں نے کمشنر پولیس سے ملاقات کی۔ کمشنر پولیس نے روی کی گرفتاری اور اس سے تیلگو فلم انڈسٹری کو ہوئے نقصانات سے فلمی شخصیتوں کو واقف کرایا۔ کمشنر پولیس نے بتایا کہ روی ملک بھر میں غیر قانونی طور پر فلموں کو اپلوڈ کیا کرتا تھا۔ پولیس نے تقریباً یہاں پر بتایا گیا کہ روی کی ہارڈ ڈسک سے 21,000 پائریٹڈ فلموں کا پتہ چلایا ہے۔ اس نیٹ ورک کے ذریعے روی نے اب تک 20 کروڑ روپے کمائے تھے۔ روی کے پاس 50 لاکھ صارفین کا ڈاٹا بھی پایا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ روی فرانس، دبئی، نیدرلینڈ، سوئٹزرلینڈ اور کریبیائی جزیروں کا دورہ کرتے ہوئے وہاں سے پائریٹڈ مواد کو اپلوڈ کیا کرتا تھا۔ کمشنر پولیس کے مطابق جن لوگوں نے روی کی مدد کی ہے ان کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر تقریباً 1,55,00,000 روپے کے سونے کے بسکٹ ضبط کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ سے آئے مسافر کی تلاشی پر اس طرح سے سونے کے بسکٹ برآمد ہوئے۔ ان بسکٹ کی تعداد 11 بتائی گئی۔ سونا لانے والے شخص سے پوچھ تاچھ کے بعد اس کے ایک اور ساتھی کو آندھرا پردیش سے گرفتار کیا گیا ہے۔ بابا نگر میں لاپرواہ ڈرائیور نے 8 سالہ بچے کو ٹکر دے دی۔ تفصیلات کے مطابق کنچن باغ پولیس اسٹیشن کے حدود میں اتوار کو لاپرواہ ڈرائیور نے 8 سالہ بچے پر گاڑی چلا دی۔ شدید زخمی بچے کی شناخت عامر علی کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ حادثے کا CCTV بھی سامنے آیا ہے۔ کار کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ کار ڈرائیور کی بھی شناخت کر لی گئی ہے اور اس کی فوٹو بھی جاری ہوئی ہے۔ زخمی بچے کے افراد خاندان نے لاپرواہ ڈرائیور کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کنچن باغ پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ سکندرآباد ریلوے پولیس نے 2 مختلف واقعات میں زائدہ 10,70,000 روپے مالیتی مسروقات، طلائی زیورات اور دوسری اشیاء کو ضبط کیا ہے۔
रेलवे पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने 16 नवंबर को मोहम्मद सैयदुल इस्लाम को गिरफ्तार किया, जिसने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में मनसूबाबंद तरीके से हजूम में से 29 ग्राम के तिलाई जेवरात और एक मोबाइल फ़ोन का सरखा किया। रेलवे पुलिस ने उसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से पकड़ा है। रेलवे पुलिस की पूछताछ पर मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। रेलवे पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 2,93,000 रुपये मालियती मसरूक़ा तिलाई जेवरात और अशिया को जब्त किया है। मुलजिम के खिलाफ साबिक़ में भी 2 केसेस दर्ज बताए गए। सरखे के एक और वाक़े में रेलवे पुलिस ने 17 नवंबर को सारिक भारत वमन गनगुर्दे, संतोष शांताराम कसकर और राजन भोसले को गिरफ्तार किया। तीनों ने 78 ग्राम तिलाई जेवरात, जिसकी मालियत 7,80,000 रुपये थी, सरखा किया था। उन्होंने पुलिस यहाँ पर बताया जाता है कि पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन रेल में सफ़र करने वाले मुसाफिरीन को निशाना बनाया करते थे। रेलवे पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन के खिलाफ साबिक़ में 2 केसेस सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने दर्ज किए थे। रेलवे पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से मसरूक़ा तिलाई जेवरात बरामद करते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज किया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सऊदी अरब मदीने मुनव्वरा के करीब हैदराबादी उम्रा ज़ायरीन की बस हादसे का शिकार, 42 से ज़ायद जाँ बहक, एक ही खानदान के 16 अफराद भी शामिल। शहर में माहौल सोगवार, वजीर आजम और वजीर आला का इजहार अफसोस। मदीना मुनव्वरा के पास हुए हादसे के महलूकीन के वर्सा को 5 लाख रुपए फीकस एज़ग्रेशिया का ऐलान। रियासती वजीर अजहरुद्दीन की क़ियादत में महलूकीन के खानदान के 2 अरकान वफ्द के साथ सऊदी अरब जाएंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का सऊदी अरब के हिंदुस्तानी सिफारतकारों से रब्ता, मौसर इक़दामात की अपील। मजलिसी अरकान मुकर्रना की महलूकीन के वर्सा से मुलाकात और इजहार ताज़ियत। दो हफ्तों के अंदर इन्हिराफ करने वाले अरकान असम्बली से मुताल्लिक़ फैसला लें वरना तौहीन अदालत के तहत कार्रवाई होगी।
تلنگانہ اسپیکر کی سپریم کورٹ نے کی سرزنش. گچی بولی میں غیر مجاز تعمیرات کے خلاف کریک ڈاؤن، حیدرا کی انہدامی کارروائی. اور بابا نگر میں لاپرواہ ڈرائیونگ کا افسوسناک واقعہ، کار ڈرائیور نے معصوم بچے پر گاڑی چلا دی. ہاسپٹل میں علاج جاری، ڈرائیور کی شناخت. اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.